کبھی اعلانیہ تو کبھی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ فیسکو شارٹ فال 600 میگا واٹ تک جا پہنچا۔ فیصل آباد میں 12، جھنگ میں 10 اور ٹوپا میں 14 گھنٹوں تک لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ چنیوٹ میں بجلی بندش کا دورانیہ 16 گھنٹے سے تجاوز کر گیا، جبکہ مرمتی کام کے نام پر بھی بجلی کی بندش معمول بن گئی۔ اور گرد و نواح میں شدید گرمی میں طویل لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کی زندگی اجیرن کر دی۔ صارفین کا کہنا ہے بجلی آنے جانے کا کوئی شیڈیول نہیں۔ دیہی علاقوں میں بجلی کی بندش کا دورانیہ 16 گھنٹے تک جا پہنچا ہے۔ شہر میں دورانیہ 10 گھنٹے ہے۔ کاروبار زندگی متاثر ہو کر رہ گیا ہے۔ شہریوں کا مزید کہنا ہے کہ ضمنی انتخابات کے دنوں میں لوڈ شیڈنگ ختم کر دی گئی تھی، الیکشن کے بعد پھر سے بجلی بند رہنا معمول بن گیا ہے۔ بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، بتی آ جا رہی ہے، بہت زیادہ بچوں کو تکلیف بن رہی ہے، گھروں میں پریشانیاں بن رہی ہیں، عورتیں باہر بیٹھی ہوئی ہیں، گرمی کی وجہ سے گھبس بنی ہوئی ہے، کوئی بتی کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ جھنگ کے شہری علاقوں میں 8 سے 10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے، جبکہ دیہی علاقوں میں بجلی بندش کا دورانیہ 12 گھنٹے تک جا پہنچا۔ متواتر 2 گھنٹے بجلی بندش سے کاروباری امور شدید متاثر ہونے لگے، جبکہ گھروں میں بھی شہریوں کا جینا دوبھر ہو گیا ہے۔ لوڈ شیڈنگ صرف جھنگ کا مسئلہ نہیں بلکہ پورے پاکستان میں لوڈ شیڈنگ کی بہت زیادہ ہو رہی ہے، لہذا گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کے انتظامات کرے اور لوڈ شیڈنگ ختم کر کے تاجروں کو اور گھریلو لوگوں کو سکون ملے۔ ٹوبا ٹیک سنگھ بجلی کی لوڈ شیڈنگ پر شہری بلبلا اٹھے۔ بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 14 گھنٹے سے تجاوز کر گیا۔ تاجروں کا کہنا ہے کہ بجلی آتی نہیں اور ہزاروں کا بل کہاں سے دیں۔ 1 گھنٹہ لائٹ آتی ہے، 1 گھنٹہ جاتی ہے، اس کے باوجود جو بل 1500 کا آتا تھا وہ بل 5000 روپے کا آ رہا ہے۔ میرا چیزیں وہی جل رہی ہیں میری۔ چلو یار کوئی بات نہیں، اور یار لائٹ تو دو، ہم کام کریں گے بھائی تبھی تو کچھ ہی سے دیں گے، بل میں تبھی بھروں گا نا، میں کام کروں گا، کام تو میں کر نہیں رہا۔ 1 گھنٹہ لائٹ آ رہی ہے، 1 گھنٹہ جا رہی ہے۔ تاجروں کا مزید کہنا تھا کہ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے کاروبار تباہ ہو گیا ہے۔ حکومت سے اپیل کی ہے کہ ہم پر رحم کیا جائے۔ فیسکو سسٹم کے نقائص سامنے آنے لگے۔ بارش سے فیسکو کے 100 سے زائد فیڈر ٹرپ کر گئے۔ شہر کے بیشتر علاقے مسلم ٹاؤن، ملت ٹاؤن، شمس آباد، حاجی آباد، اسلامیہ پارک، گلستان کالونی اندھیرے میں ڈوب گئے۔ بیشتر علاقوں میں بارش کے بعد 1 گھنٹے بعد بھی بجلی بحال کر دی گئی۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، فیصل آباد میں چند گھنٹوں کی بارش سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ چوبا روڈ کی گلیاں بارش کے پانی میں ڈوب گئیں۔ تاحال بارش کا پانی نکالنے کے لیے انتظامیہ کوئی خاطر خواہ اقدامات نہ کر سکی۔ انتظامیہ کی نااہلی کی وجہ سے فیصل آباد کے شہریوں کے لیے بارش رحمت کی بجائے زحمت بن گئی۔ چند گھنٹوں کی بارش سے شہر کے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ چیبا روڈ مکمل طور پر پانی میں ڈوب گیا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ چند منٹوں کی بارش سے علاقے میں پانی جمع ہو گیا، آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا ہے۔ 5 منٹ بھی بارش ہو تو یہ روڈ جو بڑھ جاتا ہے، یہ گلیاں تالاب بن جاتی ہیں، ایسے بچے جو چھوٹے چھوٹے بچے کو نہانے لگ جاتے ہیں، اس گلی میں بھی پانی جاتا ہے، وہ روڈ میں جاتا ہے پانی، یہ پیچھے سر پانی ہو جاتا ہے۔ آدھے گھنٹے کی بارش ہو تو اتنا زیادہ پانی ہو جاتا ہے کہ بچے گاڑیاں جو بند ہو جاتی ہیں۔ نکاسی آب نہ ہونے سے انتظامیہ کی کارکردگی کا پول کھول دیا ہے۔ کیمرامین تصور عباس کے ساتھ فصیح نقوی، سٹی 41 فیصل آباد۔ دریائے چناب میں پھر سے فلڈ وارننگ جاری کر دی گئی۔ اگلے 24 گھنٹوں میں دریائے چناب میں پانی کی سطح بلند ہوگی۔ ڈپٹی کمشنر چنیوٹ نے اداروں کو الرٹ جاری کر دیا۔ کنٹرول روم کے مطابق چنیوٹ کے مقام پر اس وقت پانی کا بہاؤ 31,000 کیوسک ہے۔ درآمدی اشیاء پر پابندی ٹیکسٹائل کے بعد طبی شعبہ پر بھی متاثر ہونے لگی۔ ادویات کے لیے را مٹیریل کے ختم ہونے کا انکشاف ہوا۔ ادویات کی قلت شدت اختیار کر گئی۔ فیصل آباد کی میڈیسن مارکیٹ میں بلڈ پریشر، امراض قلب، بخار، ٹی بی، مرگی اور سرجری سمیت 100 قسم کی ادویات نایاب ہونے لگی۔ درآمدی اشیاء پر پابندی ٹیکسٹائل کے بعد طبی شعبے پر بھی شدید اثرات ڈالنے لگی۔ ٹیکسٹائل شعبہ اور ادویات کے لیے را مٹیریل شارٹیج شدت اختیار کر گئی۔ جہاں انٹرنیشنل آرڈرز کی تکمیل میں ناممکن ہو رہی ہے تو ادویات کی مینوفیکچرنگ بھی مشکل ہے۔ لائف سیونگ ادویات کی قلت میں شدت آ گئی۔ انستھیزیا کے بعد اینٹی ٹی بی، اینٹی ڈپریسنگ ادویات کی بھی شارٹیج ہو گئی۔ فیصل آباد کی میڈیسن مارکیٹ میں ادویات کی قلت پیدا ہو گئی۔ مارکیٹ میں خون پتلا، بلڈ پریشر، امراض قلب، بخار، ٹی بی، مرگی اور سرجری سمیت 100 کے قریب ادویات نایاب ہو چکی ہیں۔ الائڈ ہاسپٹل ہے قریب الائڈ موڑ پہ ہم کھڑے ہیں، جس کی وجہ سے جو مریض آتے ہیں ان کو بھی میڈیسن نہیں مل رہی،
اور وہ میڈیسن سے اور دوائیاں جو ہیں ضرورت کی ان سے نہ ملنے کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں. ادویات جو ہیں جو روٹین کی ادویات ہیں وہ بھی یہاں پہ نہیں مل رہی. جس طرح کہہ لیں کہ پیناڈول کہہ لیں, نیند کی کہہ لیں, یا ڈپریشن اور بلڈ پریشر شوگر کی جو میڈیسنز ہیں یہ روٹین کی میڈیسن ہیں. اور جو ہمارا معاشرہ اس میں ہر جو دوسرا بندہ ہے وہ یہاں پہ ڈپریشن اور بلڈ پریشر شوگر کا شکار ہے. اور یہاں پہ حد تک انسولین نہیں مل رہی. انسولین جبکہ بہت اہم ضرورت ہے شوگر کے مریض کے لیے. چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے سابق سینئر نائب صدر میاں تنویر کہتے ہیں مشکلات شدید ہو گئی ہیں, حکومت کو ضروری درآمد پر پابندیاں ختم کرنی چاہیے. مینوفیکچر جو لوکل مینوفیکچرڈ میڈیسنز ہے وہ بھی ان کے نمبر بھی جو ہیں شارٹیج کے جو وہ بڑھنے شروع ہو گئے ہیں. اور اس وقت ڈفرینٹ قسم کی, پہلے تو صرف ہارٹ شوگر یا وہ انستھیزیا کی میڈیسنز زیادہ شارٹ تھیں, اب اینٹی ڈپریسنٹ, اینٹی ٹی بی اور اس کے علاوہ باقی میڈیسنز جو ہیں ان کی بھی دستیابی میں جو مشکلات ہیں وہ پیش آنی شروع ہو گئی ہیں. درآمد کے لیے اسٹیٹ بینک سے اجازت اور ڈالر کی غیر مستحکم صورتحال نے مشکلات کھڑی کر رکھی ہیں. کیمرامین نعیم سلیم اور ساتھی رپورٹر آزادار حسین کے ساتھ محمد بلال ڈوگر, سٹی 41, فیصل آباد. فیصل آباد کے یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء کی فراہمی ممکن نہ ہو سکی. شہری سستی اشیاء کے لیے لائنوں میں لگ کر بھی خالی ہاتھ لوٹنے پر مجبور. فیصل آباد کے یوٹیلیٹی سٹور پر اشیاء خوردونوش کی شدید قلت پیدا ہو گئی. آٹا, چینی, گھی اور دالیں یوٹیلیٹی سٹور پر نایاب ہیں. سستی اشیاء کی خریداری کے لیے آئے شہری کہتے ہیں کہ یوٹیلیٹی سٹور سے ضرورت کی اشیاء نہیں ملتی. چینی, آٹا, گھی, دالوں کے ساتھ چاول اور مسالہ جات بھی یوٹیلیٹی سٹور پر نایاب ہیں. شہری کہتے ہیں چکر لگاتے ہیں مگر اشیاء نہیں ملتی. نہ اتنے گھیو ہے, نہ اتنے کوئی چینی ہے, نہ کوئی دیندا ہے. جے دیندے بھی ہے تو ایک لائن لگا کے صبح تو شام دے کر ایک گھیو دا پیکٹ تے 2 کلو چینی او دے نال بھی اضافی سامان لینا پوے تے دیندے, ورنہ اس تو بغیر نہیں دیندے. شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ اشیاء کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے تاکہ ریلیف مل سکے. کیمرامین حسن چوہان کے ساتھ فضیل احمد, سٹی 41, فیصل آباد. بات کریں ڈالر کی تو ڈالر کی قیمتوں میں کمی کے باوجود الیکٹرانک مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ جاری ہے. 48,000 روپے کا فریج 52,000 روپے کا ہو گیا. نئی ریٹ لسٹ کے مطابق 1,04,000 کے اے سی کی قیمت 1,15,000 ہو گئی. مزید دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں. کی قیمت میں کمی بھی مہنگائی کا کچھ نہ بگاڑ سکی. الیکٹرانکس مصنوعات کی قیمتوں میں بدستور اضافہ جاری ہے. ریٹ لسٹ کے مطابق 48,000 کی فریج 52,000 روپے جبکہ 1,04,000 کا اے سی 1,15,000 روپے کا ہو گیا. الیکٹرانکس کے شعبہ سے جڑے کاروباری حضرات پریشان ہیں. لاسٹ ایئر جو موٹر سائیکل 60,000 کی تھی اس وقت وہ 80,000 کی ہو چکی ہے, اور اسی وجہ سے لوگوں کی بائنگ پاور ختم ہو گئی ہے. وہ انسٹالمنٹ پہ ہو یا وہ کیش پہ ہو, اب لوگوں میں وہ سکت ہی نہیں ہے. دیکھیں, آپ نے قسطوں پہ بھی خریدنی ہو تو اس کے لیے آپ نے قسط پے کرنی ہے کہ نہیں, ایڈوانس پے کرنا ہے کہ نہیں. لوگوں کے پاس اس بڑھتی ہوئی مہنگائی نے اور آپ کے جو یوٹیلٹی بلز ہیں اس نے لوگوں کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے. سابق صدر چیمبر آف کامرس رانا سکندر کا کہنا ہے کہ حکومت الیکٹرانکس کمپنیوں کو قیمتیں کم کرنے کی ہدایت جاری کرے تاکہ ہر حاصل و عام کی قوت خرید میں آ سکیں. جب ڈالر 1 یا 2 روپے بڑھتے ہیں تو سیکنڈ ای کمپنیز کی طرف سے ہمیں نوٹس آ جاتا ہے جی اب آپ کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. اب یہ اس فریج کا سائز دیکھیں اور 52,200 روپیہ اس کی قیمت ہے. یہ 1 سال پہلے یہ 30,000 کی تھی اور 30,000 کی 1 سال پہلے 20,000 روپیہ اس میں اس سائز میں بڑھ گیا اور یہ غریب کی پہنچ سے نکل گیا. رانا سکندر اعظم کا کہنا تھا کہ بڑھتے ڈالر کے باعث قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے, لیکن ڈالر کی قیمت کم ہونے کے بعد بھی الیکٹرانک مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ سمے سے بالاتر ہے. کیمرامین وحید محمود کے ساتھ شراز بٹ, سٹی 41, فیصل آباد. ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو بڑا دھچکا. سیمنٹ کی مقامی فروخت 50% تک کم ہو گئی. 2 ماہ میں فروخت 18,80,000 ٹن ریکارڈ کی گئی. مزید دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں. اسٹیٹ سیکٹر پر بڑا خطرہ منڈلانے لگا. سیمنٹ کی مقامی فروخت 50% تک گر گئی. سیمنٹ ڈیلرز نے قصوروار حکومتی پالیسیز کو ٹھہرا دیا. تاجر کہتے ہیں حکومت سیمنٹ صنعتوں کو سازگار ماحول فراہم کرے. ایڈوانس پیمنٹ ہوتی تھی پہلے, چلو 2-3 کسٹمر کے پڑا رہتے تھے پیسے وغیرہ, لیکن اب نہیں ہے. اب ریگولر کسٹمر ہے, ریگولر بھی پیسے دینے سے بس ہچکچاتا ہے کہ یار پتہ نہیں پیسے دینے کہ نہ دیں. سیمنٹ ڈیلرز کہتے ہیں شعبے کو تشویشناک صورتحال سے نکالنے کے لیے فوری اقدامات ضروری ہیں. 2 ماہ میں سیمنٹ کی مقامی فروخت 50% کم ہو کر 18,80,000 ٹن رہی. سیمنٹ کہہ لیں کہ 30 روپے کم ہوا ہے اور اینٹ تقریباً کوئی 200-300 کم ہوئی ہے. کوئی سیل کم ہی ہے, سیل نہیں ہوئی, سیل کم ہی ہے. ڈیلرز کا کہنا ہے 2 ماہ میں سیمنٹ کے ایک بیگ کی قیمت 750 سے بڑھ کر 1050 روپے تک پہنچ گئی ہے, جو سیکٹر کو ڈبو دے گی. حکومت قیمتوں میں کمی کے لیے لوکل مینوفیکچرنگ بڑھائے. کیمرامین وحید محمود کے ساتھ شراز بٹ, سٹی 41, فیصل آباد.
चिन्योट में किसान इत्तेहाद अवामी की डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस, हुकूमती पॉलिसियों, बिजली बिलों में इजाफे, खाद और डीजल की बढ़ती हुई कीमतों पर एहतजाज किया। चिन्योट में किसान इत्तेहाद अवामी प्लेटफार्म से प्रेस क्लब में काश्तकारों ने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चेयरमैन महर मकसूद हरल एडवोकेट, सदर मोहम्मद तुफैल लूना, सरप्रस्ते आला सैयद नूरुल हसन शाह ने शिरकत की। किसान रहनुमा महर बशीर जप्पा, महर मोहम्मद अली लाली, मुबशर माहू समेत दीगर ओहदेदारान भी मौजूद थे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए काश्तकारों का कहना था, हुकूमत किसानों को रिलीफ फराहम करने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। हमारा आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेन मकसद जो ये बिजली का जो जुल्म हुआ है, यानी हमने जो 40,000 रुपए की बिजली इस्तेमाल की है पर मंथ के लिए और 60,000 रुपए उसमें वो टैक्स लगा दिया गया, तो हमारे पास अभी यानी पहले ही हम वो महंगी खादें, महंगा डीजल लेके, महंगी ज़रूरी अद्वियात लेके पिसे हुए थे। ऊपर से ये जो अभी ये बजट जून का आया है और इस गवर्नमेंट ने इतना जुल्म किसान के साथ किया है कि हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। महंगाई के बायस किसानों के पास खाद खरीदने तक के पैसे नहीं, रही सही कसर बिजली बिलों ने निकाल दी। किसानों ने कहा, खादों की अदम दस्तयाबी से फसलों की फी मन पैदावार कम हो गई। अगर सिस्टम इसी तरह चलता रहा तो आइंदा साल मुल्क में ग़िज़ाई किल्लत पैदा हो जाएगी। 15 अगस्त को कल हमारा एहतजाज भी है और पुरअमन एहतजाज है और हमारा गवर्नमेंट से ये भरपूर मुतालबा है कि जो बिलों में बहुत ज़्यादा इजाफा किया गया है वो बिलों को वो पहले जो 5 रुपए पे पर यूनिट था उसी सतह पे ले आए। किसान जो है वो पिसा हुआ तबका है और उसे अगर और पिसा गया तो तकरीबन मुल्क की मईशत जो है वो बचाना मुश्किल हो जाएगी। जिला भर के किसानों ने भी कल एहतजाजी मुजाहिरा करने का भी ऐलान कर दिया है। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। आगे बढ़े और आपको बताएं, फैसलाबाद में मुतालबात के हक में लेबर कौमी मूवमेंट का एहतजाज 12वें रोज भी जारी है। जंग रोड एहतजाज की वजह 12 दिन से बंद ट्रैफिक की रवानगी शदीद मुतासर होने लगी। मजदूरों के साथ मुज़ाकरात के लिए कोई भी जिला इंतजामिया का ऑफिसर नहीं पहुंचा। आपको बता रहे हैं, फैसलाबाद में मुतालबात के हक में लेबर कौमी मूवमेंट का एहतजाज 12वें रोज भी जारी है। जंग रोड एहतजाज की वजह से 12 दिन से ट्रैफिक बंद है। ट्रैफिक की रवानगी शदीद मुतासर होने लगी। मजदूरों के साथ मुज़ाकरात के लिए कोई भी जिला इंतजामिया का ऑफिसर नहीं पहुंचा। आपको बताते चले, फैसलाबाद में मुतालबात के हक में लेबर कौमी मूवमेंट का एहतजाज 12वें रोज भी जारी है। जंग रोड एहतजाज की वजह से 12 दिन से ट्रैफिक बंद है। ट्रैफिक की रवानगी शदीद मुतासर है। मजदूरों के साथ मुज़ाकरात के लिए कोई भी जिले ऑफिसर अभी तक ताहाल ना पहुंचा। आपको बताते चलें, फैसलाबाद में मुतालबात के हक में लेबर कौमी मूवमेंट का एहतजाज 12वें रोज भी जारी है। जंग रोड एहतजाज की वजह से 12 दिन से बंद है। ट्रैफिक की रवानगी शदीद मुतासर होने लगी। टोबा टेक्सिंग में 2 साल से बंद सिटी अस्पताल फाल कर दिया गया। 24 घंटे इलाज मुआलजे की सहूलत फराहम की जाएगी। लेबॉर्ट्री में मुफ्त टेस्ट की सहूलत मौजूद होगी। टोबा टेक्सिंग में करोड़ों रुपए की लागत से तैयार होने वाला टोबा टेक्सिंग सिटी अस्पताल 2 साल से बंद था। डिप्टी कमिश्नर जाहिद सुहेल के नोटिस के बाद अस्पताल को फाल कर दिया गया। अस्पताल में शहरियों को 24 घंटे इलाज मुआवजे की सहूलियात मुयसर होंगी। ये हॉस्पिटल जो है ये सिटी गायनी हॉस्पिटल है। इसके लिए हमारे पास 20 बेड्स थे। जो पुरानी बिल्डिंग थी वहाँ पे कैपेसिटी कम थी, फिर हमने इधर शिफ्ट किया है उसको। हमने इधर बेड ज़्यादा रखे हैं और जो मेडिसिन है वो पेशेंट्स को बिल्कुल फ्री फराहम की जा रही हैं। टोबा टेक्सिंग के सिटी अस्पताल में मरीजों को मुफ्त अद्वियात मिलेंगी। लेबॉर्ट्री में मुफ्त टेस्ट किए जाएंगे। में रूटीन के टेस्ट हैं, हेपेटाइटिस B-C है, शुगर है, प्रेगनेंसी टेस्ट है, CBC है और रूटीन के सारे टेस्ट इंशाल्लाह इधर होंगे। महकमा सेहत के अफसरान का कहना है कि सिटी अस्पताल में स्टाफ की कमी को जल्द पूरा किया जाएगा। कैमरामैन उसामा महमूद के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक्सिंग। टोबा टेक्सिंग में महकमा सेहत ने SOPs की धज्जियां उड़ा दी। सिटी अस्पताल के गायनी वार्ड में मर्द मरीज दाखिल कर लिया। गैस्ट्रो के शिकार मर्द मरीज की मौजूदगी से खवातीन मरीजों और उनके लवाहिकीन को शदीद मुश्किलात का सामना हुआ। महकमा सेहत के अफसरान बेखबर निकले। गायनी वार्ड में जेर इलाज मर्द मरीज की मौजूदगी की फुटेज सिटी 41 ने हासिल कर ली। महकमा CNW ने फैसलाबाद के सिक्योरिटी इदारों की तामीर मरम्मत के लिए फंड्स जारी कर दिए। CPO कम्प्लेक्स, RPO ऑफिस समेत डिवीजन भर के थानों की तामीर मरम्मत की जाएगी।
सीपीयू कॉम्प्लेक्स फैसलाबाद के लिए मजीद 2 करोड़ 50 लाख रुपए के फंड जारी किए गए। आरपीओ फैसलाबाद दफ्तर के लिए 1 करोड़ रुपए, पुलिस स्टेशन मंसूराबाद के लिए 1 करोड़ 50 लाख रुपए, पुलिस स्टेशन गढ़ के लिए 1 करोड़ 50 लाख रुपए के फंड जारी किए गए। पुलिस स्टेशन समंदरी के लिए मजीद 1 करोड़ 50 लाख रुपए, पुलिस स्टेशन सिविल लाइन के लिए मजीद 88 लाख रुपए, टोबा की पीएचपी चेक पोस्ट के लिए 1 करोड़ 50 लाख रुपए, डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन चन्योट के लिए मजीद 50 लाख के फंड जारी किए गए। पुलिस स्टेशन कादिरपुर जंग के लिए मजीद 63 लाख रुपए, पुलिस स्टेशन अहमदपुर सयाल के लिए 1 करोड़ 50 लाख रुपए, पुलिस स्टेशन सैटेलाइट टाउन के लिए मजीद 2 करोड़ रुपए जारी किए गए। महकमा CNW ने चीफ इंजीनियर बिल्डिंग्स को मरासला जारी कर दिया। रेलवे एम्प्लॉयज हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी फैसलाबाद के अराजी की मलकियत का मामला, वफाकी और सूबाई इदारों में मलकियत की जंग की फाइल दोबारा खुल गई। के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट ने मामला सिविल कोर्ट फैसलाबाद को रिमांड कर दिया। रेलवे हुकाम ने कोऑपरेटिव हुकाम को 137 कनाल जगह लीज पर दी। 23 कच्ची आबादियों को FDA के नाम ट्रांसफर के अहकामात जारी किए गए। मानी दी जग्गी, बोले दी जग्गी, पुरानी सब्जी मंडी, चक 124 नड़वाला रोड, ओल्ड जड़ावाला रेलवे लाइन 213, 212 हेड वाटर वर्क, स्लॉटर हाउस कच्ची आबादियों में शामिल हैं। 1981 में लोकल गवर्नमेंट ने रेलवे लाइन अराजी को कच्ची आबादी डिक्लेयर किया। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद जलील अब्बास ने 1981 में FDA के नाम जगह डिक्लेयर की। FDA ने 137 कनाल जगह के डेवलपमेंट चार्जेस भी अदा किए। 1978 में सेक्रेटरी हाउसिंग ने FDA से मुताल्लिका कच्ची आबादियों का रिकॉर्ड मांगा, जिस पर सेक्रेटरी हाउसिंग सोसाइटी को FDA हुक्काम की जानिब से रिकॉर्ड पेश किया गया। रेलवे हुक्काम ने दिसंबर 1990 में सदर पाकिस्तान की मौजूदगी में कोऑपरेटिव के साथ मुआहदा किया। कोऑपरेटिव एक्ट 1925 के तहत सोसाइटी कोऑपरेटिव में रजिस्टर्ड की गई। जराये के मुताबिक 2003 में FDA और रेलवे हुकाम के नाम बैक वक्त अराजी मुंतकिल की गई। सिविल कोर्ट 5 माह के अंदर केस हाई कोर्ट को पेश करेगा। जंग के जेल घर में मॉडल बाजार बनाने का मंसूबा 5 साल बाद भी शुरू न किया जा सका। रेडियो के हजूम के बायस अहम शाहराहों पर तजावुजात की भरमार होने लगी। जंग के झैल घर में 5 साल कबल मॉडल बाजार बनाने का मंसूबा ताहाल शुरू न किया जा सका। रेडियो के हजूम के बायस तहसीर रोड, शहीद रोड, फुआरा चौक, रेल बाजार चौक समेत दीगर अहम शाहराहों पर तजावुजात की भरमार है, जबकि ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासिर हो रही है। रेहड़ीबानों की जानिब से झैल घर में बुनियादी सहूलियात की फराहमी तक मुंतकिल न होने का एलामिया जारी किया गया है। चेयरमैन अंजुमन ताजरान तहसीर रोड राना आरिफ का कहना था कि इंतजामिया की अदम तवज्जोही के बायस झैल घर की करोड़ों रुपए की सरकारी अराजी वीरान पड़ी है। झैल घर में सहूलियात फराहम की जाए तो मॉडल बाजार का क़याम मुमकिन हो सकता है। तहसीर रोड का जो मेन गेट जंग का है ना, जो जंग जिससे शुरू होता है वो तहसीर रोड है। इसके ऊपर ट्रैफिक का मसला सारी इसी वजह से रहता है और ये मतलब कि गुजरगाह भी ज़्यादा है। इसी को सोचते हुए DCO साहब ने भी ज़िला कौंसिल को जगह मांगी थी और उन्होंने कहा इधर आपको मॉडल बाजार बना के देते हैं, लेकिन 5 साल का तकरीबन अरसा गुजर चुका है, ना किसी ने वहाँ मॉडल बाजार बनाया, ना किसी ने कोई चीज़ का कोई काम ही नहीं किया उन्होंने उस वक्त। जिला इंतजामिया की जानिब से 5 साल कबल रेहड़ीबानों को झैल घर में मुंतकिल होने की हिदायत जारी की गई थी, ताहम इकदाम अधूरे होने के बायस मनसूबा पाया तकमील तक न पहुँचा। शहरियों की जानिब से इंतजामिया से असर नौ मॉडल बाजार की तश्कील वाले इकदाम का मुतालबा किया है। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। आगे बढ़ें और आपको बताएं, रवां तालीमी सेशन 1 साल के बजाय 8 माह पर मुश्तमिल होगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। शेड्यूल के मुताबिक तालीमी इदारों में अगस्त से जनवरी तक असातिज़ा को 6 माह में सिलेबस कवर करवाने की हिदायत की गई है। रवां तालीमी सेशन में 8वें माह इम्तहानात लिए जाएंगे। 1 अगस्त से शुरू होने वाले तालीमी सेशन में स्कूल सतह के इम्तहानात फरवरी और मार्च में लिए जाएंगे। अगला तालीमी सेशन 1 अप्रैल से शुरू होगा। CEO एजुकेशन अली अहमद सयान कहते हैं, तालीमी इदारों के सरबराहान को कम वक्त की मुनासबत से बच्चों को बर वक्त सिलेबस क्लियर करवाने की हिदायत कर दी गई है। उस्ताज़ा के लिए अच्छी खबर, महकमा तालीम पंजाब ने 17वें और 18वें स्केल में प्रमोशन के लिए उस्ताज़ा का डाटा मांग लिया। महकमा तालीम पंजाब ने 17वें से 18वें स्केल में प्रमोशन के लिए असातिज़ा का डाटा मांग लिया। डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शन पंजाब की तरफ से फैसलाबाद समेत सूबा भर के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स सेकेंडरी एजुकेशन से सीनियरिटी लिस्टों के मुताबिक असातिज़ा की फाइलें मुकम्मल करके भिजवाने की हिदायत की गई है। सीनियरिटी लिस्टों में 1400 मेल और फीमेल असातिज़ा का रिकॉर्ड मांगा गया है। सीनियरिटी लिस्टों के मुताबिक अहलियत पर पूरा उतरने वाले असातिज़ा और स्कूल सरबराहान को 18 स्केल में महकमाना तरक्कियां मिलेंगी। सीनियरिटी लिस्टों में आने वाले असातिज़ा की कारकर्दगी रिपोर्ट, सालाना बोर्ड नतायज समेत मुकम्मल फाइलें मांगी गई हैं।
फैसल आबाद में उस्मान टेक्सटाइल की जानिब से सेल्स टैक्स चोरी का मामला, मुबैना टैक्स चोरी में मुलव्विस मजीद कंपनियों का सुराग मिल गया। टेक्सटाइल की जानिब से सेल्स टैक्स चोरी केस में पेशरफ्त हुई है। सेल्स टैक्स चोरी केस में मुलव्विस 8 मजीद नाम सामने आ गए। 8 कंपनियों ने 5.2 मिलियन रुपए की सेल्स टैक्स चोरी के जरिए कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया। मुल्जमान में तैयब इंटरप्राइज, MH ट्रेडर्स, शमीम अहमद एंड को शामिल है। फहीम टेक्सटाइल, मैनको इंटरनेशनल, आयरिस इंटरप्राइज ने भी टैक्स चोरी किया। फ्रॉड में मुलव्विस कंपनियों की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल कर दी गई है। मुल्जमान से रिकवरी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। गोजरा में जजेस भी शजरकारी मुहिम में हिस्सा लेने लगे। सिविल कोर्ट्स में एडिशनल सेशन जज जावेद अकरम, हाफिज रिजवान अजीज, जुबैर गौरी और DSP अहमद तैयार तरहाना ने पौधा लगाया। गोजरा में महकमे जंगलात की शजरकारी मुहिम में जजेस भी हिस्सा लेने लगे। सिविल कोर्ट्स में जजेस ने पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज किया। एडिशनल सेशन जज जावेद अकरम, एडिशनल सेशन जज हाफिज रिजवान अजीज, मोहम्मद जुबैर गौरी ने पौधा लगाया। DSP अहमद यार तरहाना ने भी जजेस के हमराह पौधा लगाया। अहमद यार तरहाना का कहना था कि शहरी आने वाली नस्लों के तहफ्फुज के लिए शजरकारी करें। मेरा तमाम मुल्क में ये पैगाम है कि तमाम लोग जो है बढ़ चढ़ करके पौधे लगाएं, क्योंकि दिन ब दिन माहौल जो है ये खराब हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है। हम जितने पौधे लगाएंगे उतना मौसम में तब्दीली होगी, बारिशें होगी। महकमे जंगलात के अफसरान और मुलाजमीन भी इस मौके पर मौजूद थे। ब्लॉक ऑफिसर नवीद कमर ने कहा कि तहसील भर में 70,000 पौधे लगाए जाएंगे। शेरकारी हो सके, माहौल साफ सुथरा हो सके, क्लीनर ग्रीन स्कीम जो सुनामी स्कीम जो है इसके तहत पौधे लगा रहे हैं। 70,000 पौधे गोजरा में लगाए जाएंगे। जजेस, DSP और महकमे जंगलात के अफसरान ने शहरियों से अपील की कि शजरकारी मुहिम को कामयाब बनाने में किरदार अदा करें, ताकि आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल फिजाई आलूदगी और मौसमियाती तब्दीलियों की तबाहकारियों से बच सके। कैमरामैन जवाद नासिर के हमरा हाफिज फरहान अली, सिटी 41 गोजरा। फैसलाबाद में 75वें जश्न आज़ादी की तैयारियां अरूज पर। स्टॉल्स पर बच्चों बड़ों का रश। मुख्तलिफ स्कूल्स और कॉलेजेस की तालिबात भी पुरजोश। परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। 75वीं जश्न आज़ादी की तैयारियां अरूज पर पहुंच गईं। स्टॉल सज गए। मुख्तलिफ स्कूल्स और कॉलेजेस की तलबा भी सब्ज हिलाली परचम, बैजेस, टोपियां और झंडियां खरीदने के लिए बाजार पहुंच गयी। बच्चे बड़े सब खरीदारी के लिए स्टॉल्स पर उमड़ आए। तलबात कहती हैं अपने कॉलेज में 14 अगस्त के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में हिस्सा लेंगी। अभी हमने कुछ फ्लैग्स ले लिए हैं। इसके अलावा हम बच्चों के लिए कुछ चीज़ें और भी लेंगे जो कि वो पहनेंगे और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं हमारे बच्चे इस चीज़ को लेके। फैसलाबादी यौम आज़ादी को मनाने के लिए पुरजोश हैं। बच्चियों को टोपियां और सब्ज और सफेद रंग के कपड़े बहुत पसंद आते हैं। तलबा कहती हैं घरों को झंडियों से सजाने के लिए खरीदारी कर रहे हैं। हमारे कॉलेज में फंक्शंस चल रहे हैं जश्न आज़ादी के मुतालिक, तो हम उसके बारे में शॉपिंग वगैरह करने आए हैं, या फ्लैग्स वगैरह लेने आए हैं, बलून्स डेकोरेट करने के लिए लेने आए हैं और कैप्स वगैरह लेने आए हैं क्योंकि हमने टैबलेट्स वगैरह करनी है, तो इसलिए हम ये सब कुछ सामान यहाँ से खरीदने आए हैं। आज़ादी की कदर कीजिए, अपने परचम को इज्जत दीजिए। यौम आज़ादी में चंद रोज बाकी हैं, भरपूर अंदाज में मनाएं और मुल्क से अपनी मोहब्बत का इजहार करें। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ मरियम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। रुख करें चनियोट का, तो चनियोट में जश्न आज़ादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। मुल्क भर की तरह चिन्योट में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां जोशो खरोश से जारी हैं। चिन्योट शहर की तमाम बड़ी शहराओं समेत अंदरून बाजारों में सब्ज हिलाली परचमों और झंडियों के स्टॉल्स पर शहरियों का रश बढ़ गया। वतन की मोहब्बत से सरशार चिन्योट के शहरी सब्ज हिलाली परचम खरीदने के लिए स्टॉल्स पर पहुंच गए। छोटे छोटे बच्चों की झंडियों, रिबन, पट्टियों और सब्ज हिलाली परचम से मुज़य्यन कपड़ों की खरीदारी में दिलचस्पी दीदनी है। झंडे लेने आए हैं 14 अगस्त के। ले लिए आपने झंडे? ले ली। 250 रुपए के हैं। इस दफा सामान सस्ता महंगा है? बस दरमियान है, जरा महंगा भी नहीं सस्ता भी नहीं, लेकिन लोग लेते हैं, शौक से ले लेते हैं। ये सूट ज्यादा शौक से लेते हैं बच्चों के लिए? हाँ, झंडी भी लेते हैं, सूट भी लेते हैं बच्चों वास्ते, बड़ा खुशी से लेते हैं। शहरियों का कहना है पाकिस्तान के लिए हमारे बुजुर्गों ने लाखों कुर्बानियां दी, जश्न आज़ादी जोशो खरोश के जज्बे से मनाएंगे। कैमरामैन औरंगजेब के साथ वकार गुमन, सिटी 41 चिन्योट।